Welcome to lecture number 7. Lecture number 7 में we will do the concept of job order costing. हमारा जो पूरे lecture 7, 8, 9 है इनका flow कुछ ऐसे होगा. First we will do what is cost accounting systems. Then we will briefly discuss job order cost system and process cost system. After that we will go into the details of job order costing. जॉब ऑर्डर का कॉस्ट फ्लो कैसे होता है, हाउ डू यू एक्यूमुलेट एमओएच, how do you assign manufacturing cost to work in process. So we will follow this flow. Then we will do reporting job cost data, cost of goods manufactured schedule, income statement presentation. ये कैसे, how is the income statement presentation in job order costing under or over applied manufacturing overhead. So we will start with lecture number 7. And the topic that we are covering in lecture 7, 8, 9 is job order costing. Now, what is cost accounting? Cost accounting involves the measuring, recording and reporting of product costs. हमने start में पढ़ा था कि what is the product cost? Product cost वो है which can be directly, attributed to a specific product. पीरियड कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली पीरियड कॉस्ट आपकी होती है विच रिलेट्स टू योर पीरियड. अब इसका मैं आपको एक बार क्विक डिटेल बताऊंगा. प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट आर आइडेंटिफाइड विद गुड्स परचेज और प्रोड्यूस फॉर रीसेल. और product cost होती है. Period costs are those costs that are not specifically related to manufacturing or purchasing a product or providing a service that generates revenue. So to distinguish between product and period cost, you should go through lecture 4, 5, 6 again. So you should know the difference between product and period cost, and you should know the difference between direct and indirect cost. Now coming back to lecture 7, 8, 9, cost accounting involves the measuring, recording, and reporting of product cost. From the data accumulated, companies determine both the total cost and the unit cost of each product. For example, a company है which is into manufacturing cars, so it will use cost accounting to determine कि जो एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने की क्या कॉस्ट आती है और टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है if they want to manufacture 100 units. So that thing will be related to the concept of cost accounting. The accuracy of the product cost information produced by the cost accounting system is critical to the success of the company. Companies use this information to determine which products to produce. For example, cost accounting से आपको पता लग सकता है कि कौन सा product जो है उसकी कितनी cost आ रही है. So you can come to a conclusion as to which product to use and which product not to use. What price to charge? Obviously, when you know the total cost that you incur for a product, only then you can set a price for it. आपको पता होगा कि एक product, let's say product A है, उस पे हमारी cost आती है $100, तो उसके हिसाब से आप उसकी selling price fix कर सकते हैं and the amounts to produce. Accurate product cost information is also vital for effective evaluation of employee performance. For example, आपके employees हैं जो directly machines को control करते हैं जो manufacturing में use होती है. तो आप देख सकते हैं कि एक product है उसको manufacture करने में कितनी cost आ रही है. अगर तो उसको manufacture करने में cost ज्यादा आ रही है तो हो सकता है कि आपका direct material और indirect material जो है उनमें wastage हो रही हो सकता है आपकी जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी लेवल कम हो रहा हो. तो कॉस्ट अकाउंटिंग आल्सो टेल्स यू अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. A cost accounting system consists of accounts for the various manufacturing cost. अच्छा, अब इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो इसमें जो आपकी वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उन सबके अपने अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जैसे हम लेक्चर नंबर 7 में भी आगे जाके देखेंगे. दीज अकाउंट्स आर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द जर्नल लेजर ऑफ द कंपनी. जर्नल लेजर आप यू ऑलरेडी नो, यू मस्ट हैव डन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जर्नल लेजर वो होता है जिसमें आपका डाटा आ रहा होता है फ्रॉम द जर्नल. तो लेजर में अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल मटेरियल जो है, इन्वेंट्री जो आप परचेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रीज उन ट्रांजैक्शंस की हो रही होगी लेजर में. सो तो जो आपका कॉस्ट
अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपके अकाउंट्स हैं, दे आर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द जर्नल लेजर ऑफ अ कंपनी, कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हों. An important feature of a cost accounting system is the use of a perpetual inventory system. Now, what is a perpetual inventory system? Such system provides immediate up-to-date information on the cost of a product. जो आपके परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो हर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसको ऑटोमेटिकली आप अपडेट होता रहता है. फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी मैन्युफैक्चर की तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपकी इन्वेंट्री चूंकि इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती है, तो आपको पता लग जाता है कि ये कार मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आई थी, ये कार मैन्युफैक्चर करने के बाद कितना रॉ मटेरियल बच गया है और कितना रॉ मटेरियल इस कार में कंज्यूम हुआ था. तो दैट इज कॉल्ड अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. जो आपका दूसरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं प्रोडिक. प्रोडिक इज रिलेटेड टू, एज यू कैन इजीली फिगर आउट, पीरियड कॉस्ट, कि आपके पूरे साल में फॉर एग्जांपल आपका जितना एक्सपेंस था, तो वो प्रोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के साथ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपकी इंश्योरेंस होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कहा कि हमारी इतनी इंश्योरेंस थी और इतनी इंश्योरेंस कंज्यूम हो गई और इतनी इंश्योरेंस प्रीपेड की सूरत में है, तो वो आपका प्रोडिक सिस्टम के थ्रू था, विच इज रिलेटेड टू द पीरियड कॉस्ट. Now, when we talk about cost accounting systems, there are two basic types of cost accounting system. One is the job order cost system, and the second one is process cost system. Although cost accounting systems differ widely from company to company, most involve one of these two traditional product costing systems. Whenever we talk about cost accounting, so ये वाले जो दो आपके systems हैं, ये you should always understand these two systems. Majority of the companies जो हैं उसमें ये वाले system implement हुए होते हैं in one form or the another. इसके अलावा चंद आपके नए developing system हैं. For example, एक है JIT just in time system which we will do later on. तो वो भी अभी evolve हो रहे हैं. But these two systems are very traditional systems जो majority of organizations में implement हुए हैं, and they give you a very satisfactory way of doing the cost accounting. Now we will briefly discuss the job order cost system. Under a job order cost system, the company assigns cost to each job or to each batch of goods. An example of a job is the manufacture of a mainframe computer by IBM, the production of a movie by Disney, or the making of a fire truck by Western States. So the job order आप और for example इसमें जो आपका batch से related आ सकता है job order costing में, वो है for example if you have to print 225 wedding invitations, तो वो basically आपका job order है. Now why is it a job order? An important feature of a job order costing is that each job or batch has its own distinguishing characteristics. For example, each house is custom built. For example, एक कंपनी है जो घर बनाती है. अब वो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ घर वो कंपनी बिल्ड कर रही होगी. ऑब्वियसली हर घर जो है उसकी अपने यूनिक फीचर्स होंगे, उसकी अपनी यूनिक उससे कॉस्ट रिलेटेड होगी. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में यू ऑलवेज यूज जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम वेयर ईच जॉब और बैच हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. For example, we can also say each consulting engagement by a CPA firm is unique. Each printing job is different. A company is into printing business. तो उसको जो भी एक जॉब मिलती है उसको वो एक डिफरेंट नेचर की होती है. उसको कस्टमर ए जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें देता है प्रिंटिंग के लिए, कस्टमर बी डिफरेंट टाइप की चीजें देता है. तो ऑब्वियसली कस्टमर ए के पूरे फंक्शन को वो एज वन जॉब कंसिडर करेंगे और कस्टमर बी को एज अनदर जॉब कंसिडर करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड job order costing. The objective is to compute the cost per job. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपने करना होता है आपकी जो जॉब है उसकी कॉस्ट कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक बना रहे हैं घर, तो उस पूरे घर को बनाने की कॉस्ट कितनी थी, तो वो आपकी थी उस जॉब की कॉस्ट. एट ईच पॉइंट इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस, the company can identify the job and its associated costs. A job order system measures costs for each completed job rather than for set time periods. ये अब now this is very important. A job order cost system measures cost for each completed job
rather than for set time periods. For example, job order costing में आप ये नहीं देखते कि एक साल में कितनी कॉस्ट आई, आप देखते हैं कि अगर आपकी जॉब थी, फॉर एग्जांपल आप इलस्ट्रेशन 21 को देखेंगे, आपकी जॉब ये है कि आपने 225 जो है आपने इनको वेडिंग इनविटेशंस किसी को प्रिंट करके देने हैं। अब इट इज अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे आपकी ये जॉब स्टार्ट हुई, उसमें ब्लैक इंक लगनी शुरू हुई, टाइप सेटिंग की कॉस्ट थी, इनविटेशंस की ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड आपका मटेरियल था, फिर आपके ये स्टॉक वगैरह था, प्योर वाइट का स्टॉक था, एनवलप से, तो ये तमाम आप चीजें देखेंगे, ये आपके रॉ मटेरियल भी हैं, इसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी लग रहा है, इसमें आपके साथ साथ ओवरहेड्स भी लगेंगे और आपकी लेबर भी लगेगी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगी। तो इट इज अ स्पेसिफिक जॉब। जैसी आपकी ये जॉब नंबर 9501 खत्म होगी, यूजिंग इफ यू आर यूजिंग द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इस जॉब, जिसका जॉब नंबर 9401 था, जिसमें आपने 225 वेडिंग इनविटेशंस प्रिंट करने थे, उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। इसका सेकंड हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंपनी को उनके मेन्यू कार्ड का, किसी रेस्टोरेंट के, आपने 50 कॉपीज उनको प्रिंट करके देनी थी। नाउ इट इज अनदर जॉब। So this is the basic feature of a job order cost system. Now we will briefly discuss process cost system and then we will move on to job order cost system. आपका जो process cost system है, that we will do in lecture 10, 11, 12. A company uses a process cost system when it manufactures a large volume of similar products. Production is continuous. Examples of a process cost system are the manufacture of cereal by Kellogg. फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी जो है ये सीरियल बनाती है। अब सीरियल जो बनाती है वो तमाम सीरियल एक ही टाइप के होते हैं, तो वो एक प्रोसेस कॉस्ट है, एक जिसमें प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। आपके नॉन स्टॉप फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है और आउटपुट की सूरत में फिनिश गुड्स निकल रहे हैं। सो दैट इज an example of a process cost system. The refining of petroleum by Exxon Mobil, the production of automobiles by General Motors. अब General Motors GM जो है वो गाड़ियां बनाती है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो प्रोसेस चल रहा है, उनकी अपना एक लेट्स से फिक्स मॉडल है, जैसे टोयोटा का हम कहते हैं XLI। अब XLI इज ऑफ द सेम टाइप एंड सेम कैटेगरी। अब उस कंपनी को पता है कि उसने एक महीने में लेट्स से 200 प्रोड्यूस करने हैं। अब वो उस पूरे महीने को एज अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम लेंगे, पूरे महीने में वो जितने यूनिट्स उनके बनेंगे उनको प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम के तहत उनकी काउंट कॉस्टिंग हो जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग accumulates प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एक जॉब से रिलेटेड होता है और जो प्रोसेस कॉस्टिंग में होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक महीने का हो गया, सच एज अ वीक और अ मंथ, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और जॉब ऑर्डर्स। जॉब ऑर्डर में आपको मैंने बताया था कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं या जॉब्स होती हैं, उनको असाइन किया जाता है कॉस्ट, और जो प्रोसेस कॉस्टिंग में होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। In process costing, companies assign the cost to departments or processes for the specified period of time. Illustration 22 shows examples of the use of a process cost system. We will discuss the process cost system further in chapter 21. जैसे आपको मैंने बताया, we will discuss in lecture 10, 11, 12. Now this is process cost system. For example, how do you make compact disc? अब पहले oil is pumped, आपका oil pump हो रहा है, इसका ये एक अपना वो होगा, ऑब्वियसली इसमें आपकी लेबर लग रही होगी, इसमें आपका रॉ मटेरियल होगा। फ्रॉम दैट यू बेंजीन इज रिमूव्ड, ये इसका अपना प्रोसेस का हिस्सा है। वंस यू हैव रिमूव्ड द बेंजीन, देन द बेंजीन इज मेड इनटू पैलेट्स, उससे आप पैलेट्स बनते हैं और वो जो पैलेट्स हैं उससे आप सीडीज बना लेते हैं। तो आप देखते हैं ये सिमिलर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इसमें हो सकता है आप कहेंगे जी एक महीने में हमने जो सीडीज मैन्युफैक्चर किए थे उनकी कॉस्ट क्या है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपकी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं या बैच होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि आपके यहाँ मैंने 225 इन्विटेशन प्रिंट करने हैं या फिर मैंने एक घर बनाना है, वो एक स्पेसिफिक जॉब या बैच ऑफ जॉब है
जिसको आप टैकल करते हैं, तो दैट इज डन इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम में सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं ओवर अ पीरियड, over a specified time period. So we will discuss process cost system in detail in next lectures. Can a company use both types of cost system? Yes. For example, General Motors uses process cost accounting for its standard model cars. For example, GM जो उसकी अपनी standard गाड़ियां हैं, जैसे Saturns हो गई, तो वो उनके लिए वो प्रोसेस कॉस्ट करते हैं, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड गाड़ी हैं जो नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चर होके निकल रही हैं, सो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। अब जॉब कॉस्ट ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जैसे है कस्टम मेड लिमो फॉर द प्रेसिडेंट। अब ये जो है इनकी एक स्पेसिफिक जॉब थी, इसके लिए वो जॉब ऑर्डर यूज करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स इज टू प्रोवाइड यूनिट कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग for product producing. The objective of both cost accounting systems is to provide unit cost information for product pricing. आपको रहता है कि पर यूनिट जो है आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उससे आप अपनी सेलिंग प्राइस रखेंगे। कॉस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो। As I've already told you इन लेक्चर्स 4, 5, 6 के आपकी जो रॉ मटेरियल होता है वो कंपनी में मौजूद होता है, उसका ओपनिंग स्टॉक होता है, उसका क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर आपका रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्केड्यूल में भी पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्केड्यूल में पढ़ा था। तो आपका रॉ मटेरियल होता है, फिर आपका वर्क इन प्रोसेस होता है। वर्क इन प्रोसेस इज द सेमी फिनिश्ड गुड्स। वो गुड्स जो पार्शियली कंप्लीटेड हो उनको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। द फ्लो कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एमओएच in job order cost accounting parallels the physical flow of materials as they are converted into finished goods. As shown in illustration 23, now this is 23. Companies assign manufacturing cost to WIP inventory account. When a job is completed, the company transfers the cost of the job to finished goods inventory. Later, when the goods are sold, the company transfers their cost to cost of goods sold. Now, I will explain illustration 23. आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमने पहले क्लियर किया था, उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल आपके कैसे लग सकते हैं? एक आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एज आई टोल्ड यू इन लेक्चर 4, 5, 6, डायरेक्ट मटेरियल्स कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एंड लिंक्ड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, while indirect material cannot be directly linked. उसको आप उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल लग रहा है, इसी तरह फैक्ट्री लेबर लग रही है, जिसमें आपको बताया था डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर होती है। फिर आपका एमओएच लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये जैसे जैसे आपका मटेरियल्स बनने शुरू होते हैं, मटेरियल आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम होना शुरू होता है, उस पे आप लेबर लगाते हैं, आप एमओएच लगाते हैं, तो वो वर्क इन प्रोसेस में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपका जो रॉ मटेरियल है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू WIP। उससे क्या होता है कि आपकी ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में जाना शुरू हो जाता है। जब वर्क इन प्रोसेस से वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में जाता है, इट मींस कि अब आपका प्रोडक्ट जो है इट इज रेडी टू बी सोल्ड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो आपकी फिनिश गुड्स होती हैं उनको आप कॉस्ट असाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है उस पर आपकी टोटल कितनी कॉस्ट असाइन हुई होती है। लेकिन वो कॉस्ट उस टाइम पे स्पेसिफिकली किसी भी जॉब को एलोकेट नहीं की जाती, उस टाइम पे उसको एज करंट एसेट ट्रीट किया जाता है। जब आप उसको बेच देते हैं प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाया, उसमें आपका रॉ मटेरियल लगा था, आपकी ब्रिक्स लगी, आपकी सीमेंट लगी, ये तमाम चीजें आपकी रॉ मटेरियल्स थी, आपकी टाइलिंग लगी, एवरीथिंग। फिर उस पे आपकी लेबर थी, ऑब्वियसली मेसनरी की, प्लास्टरिंग की, ये तमाम आपकी लेबर थी। फिर आपके उसमें ओवरहेड लगे होंगे, जो आपका उससे रिलेटेड, लेट्स से अगर सिक्योरिटी गार्ड था वो आपकी ओवरहेड है, बाकी जो तमाम चीजें थी वो उससे रिलेटेड ओवरहेड्स थी, वो लगनी शुरू हुई। घर ऐसा ऐसा आपका कंप्लीट होना शुरू हुआ, वर्क इन प्रोसेस था। जिस दिन वो घर कंप्लीट हो गया, अब वो आपका चूंकि एक फिनिश प्रोडक्ट था, आप उसको कॉस्ट एक्यूमुलेट तो आपने कर दी है, लेकिन आपने उसको अभी तक कॉस्ट असाइन नहीं की। जिस दिन आप वो घर बेचेंगे, उस दिन वो घर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा।
और जो उसकी ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस थी वो आपका उससे रिलेटेड प्राइस हो जाएगी, माइनस आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। तो ये फ्लो ऑफ कॉस्ट है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है जिसमें रॉ मटेरियल, फैक्ट्री लेबर, एमओएच वो असाइन होती हैं वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री गोज इनटू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री which later on gets converted into cost of goods sold. So this is the flow. Now this is illustration 23. Now illustration 23 provides a basic overflow of the flow of cost in a manufacturing setting. A more detailed presentation of the flow of cost is shown in illustration 24. वो next page में है. The box in the lower corner of illustration 24, ये आपको मैं I will explain it to you in a better way. This is your, ये आपका आ गया illustration 24. अच्छा, अब now I will explain you using this diagram. अच्छा, the box in the lower corner of the illustration 24 indicates two major steps in the flow of cost. ये वाले जो दो ब्लॉक्स हैं. अच्छा, एक आपका है फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेट होता है जमा करना. एक्यूमुलेशन में व्हाट यू डू, यू एक्यूमुलेट द कॉस्ट. जो आपका खर्चा आया, एक्सपेंस आया, उसको आप एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं कि अच्छा हमारा रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ, हमारी लेबर इतनी थी, हमारा ओवरहेड इतना था. सो दैट इज एक्यूमुलेशन. accumulating the manufacturing cost incurred, और दूसरा है assigning the accumulated cost to the work done. अच्छा, सेकंड क्या होगा, once you have accumulated, अब उसको आप assign कर रहे हैं to the work done, जो आपका काम होता जा रहा है. As shown, the company accumulates manufacturing costs incurred in entries 1 to 3. अच्छा, entries 1 to 3 क्या है आपकी? पहला है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. ये वो है जो आपका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसमें आप डिनोट करेंगे आपके परचेजेस थे. तो अब आपको पता लग गया कि लेट्स से आपने रॉ मटेरियल खरीदा $300 का, तो वो परचेजेस में आपके आ गया $300. तो आपने रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट किया है. अच्छा, फिर आपका आया था फैक्ट्री लेबर. आपको पता लग गया कि हमारा ये लेबर इस पे लगी थी, तो वो आपने फैक्ट्री लेबर को डेबिट किया. और क्यों, वाई डू यू डेबिट इट? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है इट इज इनिशियली योर करंट एसेट. तो जब भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसको डेबिट करते हैं. फिर आपने अपनी फैक्ट्री लेबर को किया. नाउ व्हाट इज फैक्ट्री लेबर? फैक्ट्री लेबर इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होता है आप उसको डेबिट करते हैं. सो व्हाट यू डू, यू डेबिट फैक्ट्री लेबर इनकर्ड. और साथ आपने जो थर्ड किया वो आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था. अब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इसको आप देखेंगे आप इसको कर रहे हैं डेबिट. तो ये भी चूंकि आपकी कॉस्ट थी, इसको भी डेबिट किया. फैक्ट्री लेबर भी आपकी कॉस्ट है, इसको भी डेबिट किया. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है इसको भी आपने डेबिट किया. तो ये आ गया एक्यूमुलेशन में. ये हो गए फर्स्ट 3 स्टेप्स. अच्छा, the remaining entries which are entry 4 to 8 assign manufacturing costs incurred in the remainder of this chapter. We will use a case study to explain how a job order cost system operates. So in 7, 8, 9 we will cover all 8 of these steps. Acha, accumulating manufacturing cost. Acha, to illustrate a job order cost system, we will use the January transactions of Wallace Manufacturing Company, which makes machines tools. अच्छा, when अब हम what we are doing, हम सबसे पहले आ रहे हैं परचेज रॉ मटेरियल सेक्शन पे. स्टेप नंबर 1 को हम कर रहे हैं. ये आपका स्टेप नंबर 1 है. When Wallace receives the raw materials it has purchased, it debits the cost of the materials to raw material inventory. ये इसने किया डेबिट टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में. It debits the cost of the materials to raw material inventory. The company would debit this account
for the invoice cost of the raw material and freight cost chargeable to the purchaser. Obviously when you calculate the cost, you also take care of the freight cost, जो आपके delivery charges वगैरह everything से, they all become a part of the total cost. It would credit the account for the purchase discounts taken. Obviously इसमें अगर आपके डिस्काउंट है तो उससे आपकी जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री थी उसकी कॉस्ट कम हुई क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला. परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस ये भी आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं. अगर आपने कोई रिटर्न किया है तो ऑब्वियसली वो आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री चूंकि कम हुई है तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. Wallace makes no effort at this point to associate the cost of materials with specific jobs or orders. Why? क्योंकि अभी उसने रॉ मटेरियल अपना परचेज कर लिया है तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहा है. To illustrate, assume that Wallace Manufacturing purchases 2000 handles. 2000 हैंडल ये खरीदते हैं जिनका स्टॉक नंबर ये इतना है एट $5 पर यूनिट. तो $10,000 के जो हैं इन्होंने 2000 हैंडल ये खरीदे एंड 800 मॉड्यूल्स जो स्टॉक नंबर ये है एट 40 पर यूनिट. 32,000 के इन्होंने खरीदे 800 मॉड्यूल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42,000. 10,000 जमा 32,000. द एंट्री टू रिकॉर्ड दिस परचेज ऑन जनवरी 4 इज 4 जनवरी को रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 42,000 से बड़ी थी और चूंकि उन्होंने पे नहीं किया था अपने सप्लायर को तो वो अकाउंट्स पेएबल बन गया. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट. As we will explain later in the chapter, the company subsequently assigns raw material inventory to work in process and manufacturing overhead. ये आपको अभी मैं जरा थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखें 1 2 3 मैंने आपको बताया था. 1 आपने रॉ मटेरियल को टेक केयर किया, 2 में आपने अपने लेबर को टेक केयर किया, 3 में आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को किया. अब 4 में आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बनी थी तो ऑब्वियसली एक आपका डायरेक्ट मटेरियल में जा रहा है. क्योंकि हमने पढ़ा था कि मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली लिंक हो सकता है प्रोडक्ट से, इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, उसको आप फिजिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते. तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर 4 है, अच्छा इसमें जो मटेरियल यूज थे वो एक तो आपके डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में गए, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज में, और साथ साथ अगर आप इधर आएंगे तो आप दूसरा देखेंगे ये इनडायरेक्ट मटेरियल में भी यहाँ पे जा रहे हैं. इट मींस जो आपका रॉ मटेरियल था वो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे भी यूज हुआ जैसे ये है, या फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे भी यूज हुआ तो ये है. तो इसका मतलब है कि जो आपका रॉ मटेरियल था वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में भी गया और वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी गया एज इनडायरेक्ट मटेरियल. तो ये वाला पॉइंट जो है, the company subsequently assigns raw material inventory to work in process as in manufacturing overhead, इस चीज को एक्सप्लेन करता है. Then we come to factory labor cost. In a manufacturing company, the cost of factory labor consists of three costs: gross earnings of factory workers, employer payroll taxes. Obviously जो भी आपकी कंपनी में है उनकी wages and salaries होती हैं, फिर उनके payroll taxes होते हैं जैसे income tax होता है, फिर आपके फ्रेंच बेनिफिट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी मिली है, कोई पेंशन है, कोई वेकेशन पे वगैरह है, तो ये आपके फ्रेंच बेनिफिट्स कंसीडर किए जाते हैं, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर. कंपनीज डेबिट लेबर कॉस्ट टू फैक्ट्री लेबर एज दे इनकर दोस कॉस्ट. लेबर कॉस्ट को ऑब्वियसली आप अपने फैक्ट्री लेबर से कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लेबर आपकी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की सूरत में होती है. To illustrate, assume that Wallace Manufacturing incurs 32,000 of factory labor cost. Of that amount, 27,000 relates to wages payable and 5,000 relates to payroll taxes payable in January. The entries, अब आपकी फैक्ट्री लेबर जो थी, जो आपकी लेबर बनी वो 32,000 की थी, जिसमें वेजेस आपकी 27,000 की थी, और एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस जो थे, जो टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को देंगे आप ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, वो आपके बने 5,000. तो ये आपका, चूंकि आपने अभी पे नहीं किया तो ये आपने टू रिकॉर्ड फैक्ट्री लेबर कॉस्ट में आपने उसको एंट्री कर दी अपनी. The company subsequently assigns factory labor to work in process and manufacturing overhead. अब ये पॉइंट वही है जो मैंने आपको रॉ मटेरियल से बनाया था. The company subsequently assigns फैक्ट्री लेबर जो ये कैलकुलेट हुई थी
to work in process and manufacturing overhead. अब वो कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे, ये आपकी फैक्ट्री लेबर इनकर्ड थी। आप पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे तो फैक्ट्री लेबर इनकर्ड जो है चंद एक आपकी डायरेक्ट लेबर में जा रही है, और चंद एक अगर आप इसको नीचे ट्रेस करेंगे तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जा रही है। इट मींस फैक्ट्री लेबर जो होती है वो आपकी डायरेक्ट लेबर भी होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होती है। तभी रॉ मटेरियल और फैक्ट्री लेबर ये दोनों वर्क इन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों में जाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होता है ये डायरेक्टली जाता है वर्क इन प्रोसेस में, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये आपका पॉइंट था। द कंपनी सब्सिक्वेंटली असाइंस फैक्ट्री लेबर टू वर्क इन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अ कंपनी हैज many types of overhead cost. हमने 4, 5, 6 में भी पढ़ा था overhead cost हो सकती हैं. It may recognize these costs daily as in the case of machinery repairs and the use of indirect materials and indirect labor, or it may record overhead cost periodically through adjusting entries. जैसे आपकी आ गई थी for example prepaid insurance थी, तो आपको ये आपकी आप periodically आप अपना adjust कर सकते हैं। फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये भी periodically आप कैलकुलेट करते हैं। Companies record property taxes, depreciation, and insurance periodically. For example, this is done using a summary entry which summarizes the totals from multiple transactions. Using assumed data, the summary entry for manufacturing overhead in Wallace Manufacturing is इसको कहते हैं summary entry। ये आपने डायरेक्ट एक अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपको टोटल फिगर पता लग गया, और समरी एंट्री में आप बताते हैं वो 13,800 पे आप कैसे पहुंचे। फॉर एग्जांपल आपकी यूटिलिटीज पेएबल जो है वो 4800 की थी, आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका 2000 का था, आपका अकाउंट्स पेएबल जो है वो आपके 2600 हैं फॉर रिपेयर्स, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3000 की है, और प्रॉपर्टी टैक्सेस पेएबल है 1400 के। तो ये जो आपकी कॉस्ट थी ये वाली, ये आपकी जब सब समरी हुई 4800 प्लस 2000 प्लस 2600 प्लस 3000 प्लस 1400, सो यू केम टू द फिगर ऑफ 13800। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था। द कंपनी सब्सिक्वेंटली असाइंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वर्क इन प्रोसेस। आपको उन्होंने बताया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो होती है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ होते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपकी वर्क इन प्रोसेस में भी जाती है और आपकी जाती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। बिल्कुल वैसे ही फैक्ट्री लेबर वर्क इन प्रोसेस में भी जाती है और वो आपकी जाती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ही। जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने कैलकुलेट की इस यहाँ पे 13,800 की, ये आपकी डायरेक्टली जाती हैं, आपके स्ट्रेट जाएंगी वर्क इन प्रोसेस में। नाउ दिस इज end of lecture number 7. हम lecture number 8 में again we will go through some of these concepts, but make sure you listen to and clearly study lecture number 7 because it is very important, and it makes the backbone of the whole concept of job order costing. So this is end of lecture number 7. Thank you.